میرے اندر ہے پاکستان، میرے اندر ہے پاکستان، میرے اندر ہے پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرے اندر پاکستان، اور میں ہوں آپ کا میزبان حبیب اللہ۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پچھلا پروگرام جس طریقے سے آپ لوگوں نے پسند کیا اور جس طریقے سے آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشنز میں کامنٹ موصول ہوئے، اس سے ہمیں بڑی اس سے حوصلہ افزائی ہوئی، اور اسی وجہ سے آج ہم نے پھر ایک بار پھر ہم نے بیگم نوازش علی کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، اور وہ ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائی ہیں۔ تو بغیر کسی انتظار کیے ہم اپنے سیگمنٹس پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے مزید دلچسپ اور خوبصورت باتیں کرتے ہیں جن کے لیے آپ ہمیشہ سے منتظر رہتے ہیں، اور جس کا آپ لوگوں نے بڑی شدت کے ساتھ اپنے کامنٹ سیکشن میں اظہار کیا۔ یقین جانیے ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی، آپ لوگوں نے اتنی محبت دی، اتنا پسند کیا، اور سب سے بڑھ کے جو کامنٹس آپ لوگوں نے دیے، جس میں آپ لوگوں نے کہا کہ ایک بار پھر آپ کو بیگم صاحبہ سے ملاقات کر کے اور ان کا ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جڑنے کے بعد جو آپ لوگوں کی تاثرات ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں اور بہت پازیٹیو رسپانس ہے۔ تو میں بغیر انتظار کروائے آپ لوگوں کو ملواتا ہوں بیگم نوازش علی۔ جی بیگم صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ حبیب۔ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ میں تہہ دل سے مشکور ہوں آپ کے دیکھنے والوں کی، میرے اندر پاکستان کے جتنے اس چینل کے جتنے سبسکرائبرز ہیں، میں تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے ہمیں پذیرائی دی، ہمیں دیکھا، ہمیں سنا، اور ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حبیب اللہ صاحب آپ تو سچے اور کھرے آدمی ہیں، تو سچ کیوں نہیں بتا دیتے لوگوں کو؟ جی بالکل، سچ یہ ہے کہ اب یہ میرے اندر پاکستان کا یہ جو پروگرام ہے، یہ چینل ہے، اس پہ ہمیشہ بیگم صاحبہ کو آپ دیکھتے رہیں گے، اور بیگم یہ سمجھ لیں کہ یہ چینل ہم نے بیگم صاحبہ کو تحفتاً ہدیتاً دے دیا، اور اس کے ساتھ نوازش میری جان، اور دیکھنے والوں کو میں صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کی بیگم جہاں آتی ہوں چھا جاتی ہوں۔ کیا میں کہوں، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے کچھ ایسا عنایت کیا کہ جب ہمیں لوگ ایک بار دیکھتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں تو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور اس پروگرام کو آگے کرتے ہوئے اب ہم بیگم صاحبہ سے، چونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بڑی شدت سے انتظار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں جس طرح بیگم صاحبہ نے چلے کاٹ کے ایک کشف حاصل کیا ہے روحوں سے ہم کلامی کا، اور آپ اسی سیگمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن یقین رکھیے ہم بیگم صاحبہ سے درخواست کریں گے اور ضرور چاہیں گے کہ وہ روحوں سے بھی ہم کلامی ہو، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں ہم چاہیں گے پوچھیں بیگم صاحبہ سے، اور حالات حاضرہ کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بیگم صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور آپ کا ریاکشن لینا چاہوں گا، کیونکہ آپ کی کمیونٹی کی بات ہے اور خواتین کے حقوق کی بات ہے، جس طریقے سے ایک نہتی لڑکی، ایک بچی جس نے پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا اور نوبیل پرائز اتنی کم عمر میں اس نے حاصل کیا، میں ملالہ یوسفزئی کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر جس طرح سے تنقید ہو رہی ہے، کیا ریاکشن دیں گے آپ، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس پہ تو آؤں گی حبیب، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم کچھ ڈرے سے ہو، کچھ سہمے سے ہو میری جان۔ لیٹ می ایشور یو کہ میں بالکل بھی خطرناک عورت نہیں ہوں، اور یہ بات تو ہم پہلے ہی طے کر چکے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ تم ایک شادی شدہ آدمی ہو، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میری عادت گھر توڑنے کی بالکل بھی نہیں ہے۔ I'm not a home breaker, I'm not a home wrecker, I'm a home maker۔ سمجھتی ہوں حبیب کہ ہم جب پردیس میں ہوتے ہیں تو ہم شاید فاصلوں میں تو دور ہوتے ہیں فزیکلی، لیکن ہمارے جو ایک تعلق ہوتا ہے ہماری دھرتی سے، ہمارے لوگوں سے، ہمارا جو ایک جذباتی کنیکشن ہوتا ہے وہ اور مستحکم ہو جاتا ہے، کیونکہ دور بیٹھے
जिस किस्म के वसवसे, जिस किस्म के खटके हमें लगे रहते हैं, हम होते यहाँ हैं लेकिन हमारा ध्यान वहां होता है। अब आई बात मलाला की। सच पूछिए तो मैं पुरमलाल हूं, मुझे बहुत मलाल है। मैं समझती हूं इस बात पे नहीं कि मलाला ने क्या कहा, इस बात पर कि उसने जो भी कहा उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बैठे चंद अनासिर ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, जिस तरह से एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाया गया मलाला के खिलाफ। आपने अभी बात की फेमिनिज्म की और वुमेन एम्पावरमेंट की और ख़वातीन की हुकूक की, तो यकीनन मैं इसमें आई टेक ग्रेट प्राइड इन द फैक्ट दैट आई हैव ऑलवेज बीन अ फेमिनिस्ट। और मैं समझती हूँ कि वो क्या शेर है, वो क्या मिसरा है कि तस्वुरे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, कि अगर औरत ना होती, अगर फेमिनिटी ना होती तो दुनिया कितनी फीकी फीकी होती। अभी खुद ही सोच लो हबीब कि इस दुनिया में सिर्फ मर्द होते और हम औरतें ना होती तो हमारी जिंदगी कैसी होती। हकीकतन आप दुरुस्त फरमा रही हैं, और इस हवाले से मैं, चूँकि आपने ये बातें की हैं मेरे शादीशुदा होने पे, और ये मैं चाहूँगा कि आप ये बातें प्रोग्राम के दौरान, ये बातें हम बाद में भी तय कर सकते हैं, बाद में इन इश्यूज़ के ऊपर हम बात कर लिया करेंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन कुछ और देखना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो भाई आप इसको जो है ना एडिट कर दीजिएगा। ये चीज़ें जो है ना हो सकता है कि ऐसा नहीं होने वाला हबीब, क्योंकि हम समझते हैं कि हर इंसान को हक होना चाहिए। और बल्कि यहाँ पर मुझे एक किस्सा याद आ गया, एक कहानी याद आई जो मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ी और मुझे बहुत उसने इंस्पायर किया। ये कहानी है सच और झूठ की। दो सहेलियां थी, तालाब में गई, गर्मी बहुत थी जैसे आजकल पड़ रही है पूरे पाकिस्तान में भी, यहाँ अमेरिका में भी। और सच और झूठ ने फैसला किया कि वो तालाब में तैराकी करेंगी। तो दोनों ने अपने कपड़े उतारे और वो तालाब में घुस गई। नहाते नहाते झूठ को ख्याल आया कि क्यों ना मैं शरारत सूची, और आप तो जानते हैं कि झूठ को शरारत करने का बहुत शौक रहता है। तो झूठ तालाब से निकली और उसने सच के कपड़े ओढ़े और अपने ऊपर चढ़ा लिए और अपने कपड़े अपनी बगल में दबोचकर झूठ वहां से शहर का रुख कर गई। जब सच को एहसास हुआ कि झूठ तो यहां से निकल गई है, तो सच भी तालाब से निकली। अब उसके पास कोई कपड़े थे नहीं, लेकिन वो अपने कपड़ों के पीछे भागी शहर की ओर कि किसी तरह वो झूठ से अपने कपड़े छीन सके। जब वो शहर तक पहुंची तो लोगों ने जब सच्चाई को, सच को नंगा देखा तो लोग सहम गए और लोगों ने अपनी नजरें फेर ली। सच इतनी शर्मिंदा हुई कि वो वापस तालाब की रुख चली गई। और सुना है कि आज तक झूठ सच का लिबादा ओढ़े शहरों में शहर शहर घूम रही है और लोग उसी को सच मान रहे हैं। और इसीलिए आज तक सच नंगा होता है, शफाफ होता है, वो जैसा है वैसा नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली। मैं समझती हूँ कि यही अफसोस की घड़ी है कि लोगों के अंदर काश ये हौसला होता, हिम्मत होती कि वो सच को, चाहे वो नंगा ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑफेंसिव ही क्यों ना हो, उसको बर्दाश्त करने की अपने अंदर ताकत। अच्छा, हम मौजू की तरफ वापस आते हैं। हम मलाला यूसुफजई के हवाले से बात कर रहे थे जी। तो ये उनके ऊपर एक बड़ा नाकदीन का एक एतराज़ है कि वो 17 साल की उम्र में कैसे किताब लिख सकती हैं, और इस तरह ये तो CIA की और इनकी एजेंट के तौर पे काम कर रही हैं। पाकिस्तान में ये वापस एक सियासी शख्सियत बना के वापस भेजा जाएगा और पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया जाएगा। क्या रिएक्शन? जानी, जिन नाकदीन का तुम जिक्र कर रहे हो उन नाकदीन से एक सवाल करना चाहूंगी, और सवाल ये है कि शायद मोहम्मद बिन कासिम की उम्र भी तकरीबन 16 साल थी जब उन्होंने देबल फतह किया। अगर देबल फतह करने के लिए 16 साल का वो लड़का हाथ में एक तलवार पकड़े और दिल में हौसला लिए एक बच्ची को बाजियाब कराने देबल आ सकता था और इस्लाम के झंडे गाड़ सकता था। वो तो मर्द था ना। बस अफसोस यही है मेरी जान कि हमारे यहाँ मर्द बहुत कुछ कर सकते हैं
बहुत कुछ कह सकते हैं, और मर्दों के पास शायद एक लाइसेंस है कि मर्द है, मर्द की तो आदत होती है, तो उसको कबूल कर लिया जाता है। लेकिन जिस लम्हे एक औरत या एक लड़की अपनी ओपिनियन का इजहार करे, अपनी राय का इजहार करे, तो पूरे का पूरा माशरा सहम जाता है, डर जाता है, हिल जाता है कि इस लड़की को इतनी लंबी जबान कैसे लग गई। मुझे लगता है कि शायद देखने वालों को या सुनने वालों को यह खौफ रहता है कि अगर इस लड़की को हमने सुन लिया तो कल को हमारे घर में रहने वाली जो खवातीन हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे सबसे बढ़कर हमारी बीवियां हैं, अगर वो हमसे सवाल करने उठ गई तो फिर हम क्या करेंगे? भाई, औरत का मकसद तो किचन में बैठकर रोटी परोसना है, घर की सफाई करना है, झाड़ू पोछा करना है, मर्द के कपड़े धोना, उनको इस्त्री करके, और ये मेक इंश्योर करना है कि उनका जो घर के मर्द हैं उनको जिंदगी में कोई दिक्कत पेश ना आए। लेकिन अभी आपने बात की मलाला यूसुफजई के हवाले से, और उनकी स्टेटमेंट को मैं समझती हूं कि बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन मलाला ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, इस पर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन मलाला ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने जो कुछ कहा, और जहां जहां कहा। और कहने वाले कौन थे? ये तरह मैं जरूर चाहूंगा कि आप उनका नाम लें। कहने वालों में सबसे ज्यादा लीड कौन लोग कर रहे हैं? मैं चूंकि एक फेमिनिस्ट हूं और मैं जानती हूं कि आप मुझे किस तरफ लीड कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूं राबी पीरजादा, वीना मलिक, मथीरा, फिरोज खान, जो हमारे मलिक के भाई भी हैं और खुद शो बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, इन लोगों की रिएक्शन को बहुत अटेंशन मिली। तो मुझे थोड़ी सी हैरत ये हुई, और मैं बहुत अफसोस और माजरत के साथ मेरी जान हबीब ये कहना चाहूंगी कि अब अगर हमें ये लोग दीन सिखाएंगे, या अगर ये हमें इस्लाम का दर्स देंगे, तो माफ कीजिएगा, ऐसे इस्लाम से अल्लाह बचाए। एग्जैक्टली ऐसे लोगों को कतन भी कोई हक नहीं पहुंचता कि वो दीन के ठेकेदार बने या दीन को लीड करने वाले बने। मैं तो हैरान हूं कि ये प्रोग्रेसिव लोग किस तरीके से और इस चीज़ की मुझे खुशी है कि दीनी हलकों में या दूसरे लोगों में ऐसी कोई अभी तक आवाज़, ऐसी नुमाया आवाज़ सामने नहीं आई। लेकिन जो ये लोग प्रोग्रेसिव, जिन्हें अपने आप को सेकुलर डिक्लेयर करते हैं, उनकी तरफ से ऐसी बातें होना निहायत अफसोसनाक है। मैं समझती हूँ हबीब, और ये कहना बहुत अहम है कि पाकिस्तान के अंदर एक इंजीनियरिंग चल रही है, और कुछ ऐसे पपेट्स इंजीनियर किए जाते हैं जो इस किस्म के मौक़ों की खोज में रहते हैं जहां वो अपने नंबर बढ़ा सकें। अभी उन नंबरों की गेम में हम बाद में आएंगे। मैं चाहती हूं कि आप मुझसे सवाल करते रहें और मैं आपको जवाब देती रहूं। ज़रूर। मैं अभी हालिया दिनों में आपके सामने से ज़रूर वाक़या गुजरा होगा कि जहाज़ में एक कपल किसी जिन हालात के तहत देखा गया है और उस पर जिस तरीके से रिएक्शन आया है, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी आप उस पर क्या रिएक्शन देंगे? मेरा दिल खून क्या रो रहा है अभी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हालात इस नहज पर पहुंच जाएंगे कि एक मर्द और औरत, खा वो मियाँ बीवी ही क्यों ना हो, खा वो निकाह के पाकीज़ा बंधन में क्यों ही ना बंधे हों, और वो 10,000 फीट की बुलंदी पर परवास करते हुए जब एक दूसरे की तरफ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो मैं समझती हूं कि धरती हिल जाती है। लोगों का गुस्सा उमड़ उमड़ कर बाहर आता है, और जिस गुस्से को हम सब ने विटनेस किया ट्विटर पे, और एक डिबेट चली, और मैं तो खैर हमेशा से, सच्ची बात है कि मैं हमेशा से डिबेट्स के निहायत हक में रही हूं। मैं समझती हूं कि बातचीत चलती रहनी चाहिए, लेकिन जिस किस्म की बातचीत चली और जिस किस्म के इल्जामात उन पे धरे गए, और जिस किस्म से एक खास तबके ने, ये वही तबका है जो मलाला यूसुफजई पे भी रिएक्ट किया है, ये वही लोग हैं जिनके ज़मीर जो हैं वो हिल जाते हैं
जब कहीं भी मोहब्बत की बात हो, जब कहीं भी दोस्ती की बात हो, जब कहीं भी प्रोग्रेस की बात हो, और तो मैं उनसे निहायत आपकी बेगम और आपके देखने वालों की बेगम होने की हैसियत से, पाकिस्तान की बेगम होने की हैसियत से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं समझती हूँ कि बिल्कुल हमारा माशरा इस किस्म की नाजेबा हरकत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ कि हमें अपनी माशरती रवायात को बरकरार रखना चाहिए। एक शौहर का अपनी बीवी पर सरेआम तशद्दुद करना जायज है। मैं समझती हूँ कि एक मर्द का अपनी मर्दानगी एक निहत्ती लड़की के ऊपर साबित करना, चाहे वो उसकी बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, वो जायज है। लेकिन जब आप अपनी मनकूहा बीवी से या किसी भी और रिश्ते में आप मोहब्बत का इजहार करेंगे और वो भी पब्लिकली, तो यकीनन हमारे कौम की दीवारें, हमारे कौम की जो बुनियादें हैं वो हिल जाती हैं। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम करती हूँ और मैं गुजारिश करती हूँ कि आज के बाद कोई पाकिस्तानी मर्द कभी भी किसी औरत से, चाहे वो कोई भी हो, अपनी अफेक्शन का इजहार ना करे। बहुत खूबसूरत पैराई के अंदर आपने पूरे मुआशरे को एक फेस दिखाया है कि हम किस तरह की हिपोक्रेसी के अंदर जी रहे हैं, किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं और किस तरीके की हम ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बीइंग मर्द होने के हवाले से मैं जब देखता हूँ कि इस मर्दों की मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें जिस तरीके से बेगम साहिबा ने उसकी अक्कासी की है वो निहायत अफसोसनाक है। और चलते हैं बेगम साहिबा की तरफ अगले सवाल। लेकिन हमने तो सुना था हबीब साहब के मर्द को दर्द नहीं होता। लगता है कि आपको दर्द हो रहा है मेरी बातों से। अब तो दर्द की उम्र ही गुजर चुकी बेगम साहिबा। जिस उम्र में दर्द मिलने थे उस उम्र में हम आपसे मिल ना सके, हमारी ये बदनसीबी। तो लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। हम आज भी बहुत खुश हैं। हम जब से आपको देख रहे हैं, हम आपके फ़ैन हैं और हमेशा से एक तड़प ख्वाहिश रही है कि आज बहुत ही मसरूर हूँ, बहुत खुश हूँ कि बेगम साहिबा आज मेरे सामने बैठी हैं और हम गुफ्तो शनीद है। कोई सवालों की जद में नहीं है, लेकिन ज़रूर एक हेल्दी डिस्कशन। आपकी बात से, आपकी सोच से यकीन जानिए हबीब कि मुझे तक़वियत मिलती है। और लोग चाहे जो मर्जी सोचें और मेरे बारे में जो मर्जी राय रखें, लेकिन आज मैं बरमला इजहार करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ आपके देखने वालों को भी कि मैं समझती हूँ और दिल से समझती हूँ कि मर्द एक बहुत मासूम जानवर है और मर्द को प्यार और मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं मर्द की खसलत से बखूबी वाकिफ हूँ और मुझे खुशी हुई ये जानकर कि मैं आपको खुश करने में कामयाब हुई और मेरी ये ख्वाहिश रहेगी कि मैं आपके देखने वालों को भी खुश कर सकूं। यकीनन ये सिर्फ मेरी सोच नहीं, आपके लाखों के अंदर मदाह मौजूद हैं जो आपके प्रोग्रेसिव ख्यालात से बड़े इम्प्रेस हैं और आपसे निहायत मुतासर हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को तब्दील देखना चाहते हैं, अपने इर्द गिर्द हालात को तब्दील देखना चाहते हैं। लेकिन आप भी एक कोशिश हैं, हम भी उस कोशिश का एक हिस्सा हैं। इंशाल्लाह ज़रूर एक न एक दिन हमें कामयाबी मिलेगी। तो बेगम साहिबा आजकल बहुत चर्चा चल रहा है 5th जनरेशन वार का और ख़ास तौर पे हमारे इदारे इस हवाले से बहुत इसकी जद में आते हैं और वहाँ से बहुत सारी डायरेक्शंस भी ऐसी या इस तरह का बताया जाता है कि 5th जनरेशन वार्स के ज़रिए अब हमारे मुल्कों के ऊपर या हमारी कौमों के ऊपर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। आप इस सारे सिनेरियो को आप किस तरीके से देखती हैं? मैं इसको खाम ख्याली के तनाजुर में देखती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये जो एक पाकिस्तान के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया 5th जनरेशन वॉरफेयर का, और जिन लोगों की तरफ से इसको मकबूल किया गया या जहां से इस हवाले से तशहीर की गई और बहुत तशहीर की गई, तो ये वो लोग थे जिनसे हम
ये उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे थे या ये तवक्कुआत लगाए बैठे थे कि ये हमारे महाफिज हैं और ये हमारी धरती के, हमारे इंटरेस्ट के, हमारे मुल्क के, हमारी अवाम के महाफिज हैं। अभी मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ, और ये मेरा एक बहुत छोटा सा और मासूमाना सा सवाल है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 इंडिया की तरफ से जब रिवोक किया गया और मकबूजा कश्मीर के स्टेटस को इंडिया ने यूनिलैटरली खत्म करके दुनिया को कहा कि कश्मीर तो हमारा अटूट अंग है, और वहां पर वो घुस बैठिए बन गए। तो मैं समझती हूं कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, और ना सिर्फ मैं, बहुत सारे लोग जो मेरी इस बात को सुनते होंगे वो भी ये समझते हैं कि जब हम पिछले 73 सालों से इतनी कुर्बानियां देते आए हैं, अपने पेट काट काट कर इंश्योर करते आए हैं कि हमारे जो बहादुर महाफिज हैं उनके वो कभी खाली पेट ना सोएं, हम इंश्योर करते आए कि जो हमारे महाफिजीन हैं या हमारे महाफिज हैं उनको हर किस्म की सहूलियात मैसर हों, उनको F-16 भी मिले उड़ाने को, उनको अच्छे जर्मन टैंक्स भी मिले चलाने को, उनको स्टाफ कार्स भी मिले एयर कंडीशनड, और बिजलियां भी मिले, और पेट्रोल भी मिले, और हाउसिंग अथॉरिटीज भी मिले, और फौजी फाउंडेशंस भी मिले, और कॉर्नफ्लेक्स भी मिले, और सीमेंट की बोरियां भी मिले, और पता नहीं क्या क्या मिले। तो हम समझते थे कि शायद हमारी तरफ से एक टिट फॉर टैट रिएक्शन आएगा, कोई जिस तरह उन्होंने फिजिकली वहां पर कब्जा किया तो शायद हम उसका कोई भरपूर जवाब दे सकेंगे। लेकिन आपके ख्याल में जंग शुरू हो जानी चाहिए? नहीं होनी चाहिए थी। मैं कभी भी जंग के फेवर में नहीं रही, क्या हल होगा? लेकिन मैं समझती हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के जैसे हमने सुना और है, तो हमारे पास दिखाने के दांत तो थे ना, तो कम से कम वो दांत तो दिखाते। तो हमें तो बता दिया गया कि 5th जनरेशन वॉरफेयर। अभी मैं समझती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट ने हमारे मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया है, शायद तारीख में कभी हमारे मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचा। मैं समझती हूं कि ये एक ऐसा बहाना क्रिएट कर दिया गया या एक ऐसा फसाना क्रिएट कर दिया गया जिसके बाद हमारे जनरेशंस को ये बताया गया कि हर जंग, हर डिस्प्यूट, हर तनाजे का हल जो है वो सोशल मीडिया पर है। यानी हमारे दुश्मन जो है वो जितनी मर्जी जारियत दिखाते रहे, हम उसका जवाब, वो पहले कहा करते थे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अभी वो हम ईंट का जवाब पोस्ट से देंगे। आप पोस्ट करते रहे, आप पोस्टें डालते रहे, आप पोस्टें डालते रहे, लेकिन क्या, और मैं आपसे सवाल करती हूं हबीब, डज दैट चेंज ग्राउंड रियलिटीज? मैं समझती हूं, और जिस तरह, आई एम सॉरी बट आई एम गोइंग टू टेक दिस टाइम, कि जिस तरह ये कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको भर्ती किया गया, और मेरे सुनने में आया है कि शायद 50-50 हजार रुपए महाना पर कई लाखों ऐसे बेरोजगार नौजवान हैं जो पेरोल पर काम कर रहे हैं और जिनका मकसद मलाला जैसी लड़कियों को अपना हदफ बनाकर अपनी पेट्रियोटिज्म या अपनी हुब्बुल वतनी साबित करनी पड़ती है। मैं पूछना ये सिर्फ चाहती हूं कि पिछले 5 सालों के अंदर, या छोड़िए 5 सालों को, पिछले 50 सालों के अंदर हमने क्या खोया और क्या पाया है? मुझे तो लगता है ये इल्ज़ाम है कि जिस तरीके से मलाला यूसुफजई के हवाले से जिस तरह आपने पिक्चर पोर्ट्रे की है, क्योंकि देखें मलाला यूसुफजई को जिस वक्त रिकवर किया गया, आर्मी के जहाज़ गए वहाँ पे और हेलीकॉप्टर्स गए और उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई और इसको कंफर्म किया गया कि मलाला ज़ख्मी हैं और उनको, तो वो आखिर वो ताकतें क्यों चाहेंगी? ये तो मेरा ख्याल है ये वही ताकतें हैं हबीब। और मैं आपकी थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, यादाश्त को थोड़ा और रिफ्रेश कर दूं। आपको याद होगा एक मुख्तारा माई का केस भी हुआ था हमारे मुल्क में, और आपको शायद याद हो कि ना याद हो, उस वक्त के जो हाकिम वक्त थे, जो एक मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे, खुद को डिक्टेटर कहलाना पसंद नहीं करते थे, कभी चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते थे,
कभी प्रेसिडेंट बन जाते थे, कभी रेफरेंडम करवा लेते थे, और कभी जब ट्रेटर डिक्लेयर भी हो गए तो फिर वापस आना उन्होंने गवारा नहीं किया। लेकिन ये रिकॉर्ड की बात है हबीब कि वो कहने लगे कि हमारे मुल्क में लड़कियां या खवातीन अपना रेप करवाती हैं ताकि वो बाहर मुल्कों में अजाइलम ले सके। मैं जानती हूँ क्या कहते हैं वो शेर है, बात तो है रुसवाई की, क्या है वो शेर, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, कुछ ऐसा ही है। खैर गुफ्तगू बहुत संजीदा हो गई। अभी कुछ रोमानवी बातें करो, कुछ मुझसे पूछो कि बेगम साहिबा आपकी जिंदगी में कोई है या नहीं। बेगम साहिबा आपका आगे क्या इरादे हैं? जी, बेगम साहिबा की फरमाइश है कि कोई बहुत सारी संजीदा बातें हो चुकी हैं और अब कोई प्यार भरी, कोई मस्ती रंगीनी वाली बातें करें। तो बेगम साहिबा, नाजरीन बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे कि रूहों के हवाले से कोई सिलसिला जोड़ा जाए, आप कोई राब्ता किया जाए। तो ऐसा आज मुमकिन हो सकता है कि कोई आज किसी रूह से बात हो सके, या मेरे नाजरीन जो इस तड़प के साथ इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं और हमने ये इसको एंड पे रखा, कोई कोशिश करें कोई राब्ता मुमकिन हो, और किससे हो सकता है? हो तो सकता है मेरी जान, और मैं समझती हूँ where there's a will there's a way, और यकीनन मेरे लिए तकलीफ दे अमल होता है, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हूँ हबीब। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और तकालीफ हैं जिनका जिक्र करना जरूरी समझती हूँ। सच ये है हबीब कि जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि मैं बेवा हूँ पर मेवा हूँ। मैं अपना घर फिर से बसाना चाहती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस मुल्क से और जिस माशरे से मेरा ताल्लुक है, जब एक बेवा औरत खुलकर अपनी पसंदीदगी का इजहार करे या अपनी चाहत का इजहार करे या इस ख्वाहिश का इजहार करे कि वो फिर से अपना घर बसाना चाहती है, तो उसको एक मायूब नजर से देखा जाता है। मैं आज आपकी वसातत से देखने वालों को बताना चाहती हूँ कि my heart is like the army. It is open to any man between the age of 18 and 80 really. सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैंने लास्ट टाइम जब आपको एक इंटरव्यू में देखा, आप पाकिस्तान में थी गलबन उस वक्त आप कह रही थी कि बहुत जल्द नाजरीन ये खुशखबरी सुन लेंगे और आपने कोई फैसला कर लिया है। मैं तो इस वजह से जो है इस ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कोई सवाल नहीं किया, तो क्या अभी तक तलाश जारी है और अभी तलाश मुकम्मल नहीं जारी? मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर वही लोग जो मलाला यूसुफजई को क्रिटिसाइज करते हैं फॉर सेइंग कि भाई शादी की क्या जरूरत है, पार्टनरशिप होनी चाहिए, वही लोग दरअसल पार्टनर तो ढूंढते हैं लेकिन बीवी नहीं ढूंढते। कैसा शौहर देखना चाहती हैं, कैसा शौहर आपको चाहिए? हम अपने इस लाखों नाजरीन से हो सकता है जो आपके मदाहों में से कोई दिल फेंक आपके ऊपर फरेफ्ता हो जाए और आपसे शादी का ख्वाहिशमंद हो, तो बताएं नाजरीन को कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, किस तरह का आप शौहर देखना चाहती हैं? मैं एक ऐसा शौहर चाहती हूँ जो एक मर्द का बच्चा हो, जो एक मर्द हो लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी हो निस्वानियत को बर्दाश्त करने की, निस्वानियत को समझने की, और शायद उसके अंदर भी वो कैपेसिटी हो। मैं तो शादी कर चुका, आप तो गुजर चुके उन राहों से, हम उन राहों के मुतलाशी हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे कहा जाता है उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मुझे यकीन है कि कोई ना कोई तो होगा वहां इस भरी दुनिया में। ज़रूर नाजरीन देखें और कोशिश और तलाश में बेगम साहिबा की मदद करें। इस हवाले से मैं भी बहुत नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात रखता हूं बेगम साहिबा के लिए कि कोई इनको अच्छा शरीक हयात मिल सके। बेगम साहिबा बहुत ही मुतमव्वल और मुतमद्दन और ख़ासी दौलत भी इकट्ठी। चलिए आज आपके लिए एक इंकशाफ किए देती हूँ, क्योंकि सुना है कि आजकल वही बिकता है जो दिखता है। खैर
दिखाती तुम्हें रहती हूँ, आज सुनाती भी हूँ आपको। मलिक रियाज का नाम तो आपने सुना होगा। जी, काफी अरसे से मेरे पीछे पड़े हैं। Really? हाँ, लेकिन उनके खिलाफ तो अभी करंटली जो है ना बैरिया टाउन में जो है ना जीएस सिंध ने बड़े एहतजाजात और इस तरह के कर रहे हैं, और वो आपके पीछे हैं और जीएस सिंध उनके पीछे है। हो सकता है कि जीएसएन वालों को मैंने ही भड़काया हो, उकसाया हो और बोला हो कि जरा मलिक रियाज को उसकी जगह दिखा दो। खैर, जगह तो उसकी है नहीं, जगह तो उन गरीब लोगों की है, उन गोथों की है, उन लोगों की है जो उस मिट्टी से जुड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तो वाकई ब्रेकिंग न्यूज है कि मलिक रियाज साहब आपके पीछे। जी, मेरी ही मोहब्बत में बहरिया टाउन से आया था। मुझे कहने लगे, बेबी तुम क्या जानो कि मैं तुम्हें क्या क्या नहीं दे सकता। तो मैंने कहा दिखा दो। तो दिखाने को उन्होंने एक और बहरिया टाउन खड़ा कर दिया। अब ये मुझे क्या पता था कि वो बहरिया टाउन गरीबों की जमीनों पर खड़ा हुआ है। मैं समझती हूँ कि जो हंगामे हमने कराची में देखे हैं, ये तो दरअसल एक ट्रेलर है, और ये एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए उन तमाम अनासर के लिए जो सदियों से तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन दहाइयों से मुल्क पर काबिज हैं, और जहां उनका दिल करता है वो डेवलपमेंट कर देते हैं। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि फलस्तीन में बहुत हंगामे बर्पा हुए, और पाकिस्तानियों ने अपनी नेचर के मुताबिक फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई। हम भी उस आवाज में अपनी आवाज शामिल करते हैं, लेकिन हम पूछना सिर्फ ये चाहते हैं कि वहां में और यहां में क्या फर्क है। इजराइली क्या कर रहे हैं? वो फलस्तीनियों की जमीन पर अपने लिए सेफ हेवंस बनाते हैं। वो फलस्तीनियों की जमीन पर काबिज होकर ऐसी दीवारें खड़ी कर देते हैं जिसमें वहां के बसने वाले, जो एक्चुअल वहां के इनहेबिटेंट्स हैं, जो एक्चुअल फलस्तीनी है, जिनका वो मुल्क है, जिनकी वो धरती है, वो उन दीवारों को क्रॉस नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे सवाल है हबीब, कि आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? कभी ये हाउसिंग अथॉरिटी, कभी वो हाउसिंग अथॉरिटी, कभी ये बहरिया टाउन, कभी वो बहरिया टाउन, और आज पाकिस्तानियों के ऊपर उन्हीं की धरती को तंग किया जा रहा है, दीवारें खड़ी की जा रही हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि तुम दुनिया की तारीख उठा के देख लो, जब जब लोगों को दीवार से लगाओगे तो लोग इश्तियाल अंगेज तो होंगे ही। अब समझ आ रही है कि जीएस सिंध का ये अटैक या ये एहतजाज किसकी इमा पे हो रहा है। नाजरीन, हमारे पास बेगम साहिबा ने इंकशाफ कर दिया है, तो आप लोगों तक भी ये खबर पहुंच जानी चाहिए कि शायद इसमें कहीं ना कहीं बेगम साहिबा का हाथ मौजूद है। लेकिन चलें, इससे निकलते हैं। और पिछली बात आपने जो है ना एक फ़लस्तीन के हवाले से की, तो उससे कनेक्टेड बात, चूँकि हम मलाला यूसुफज़ई को भी डिस्कस किया और फ़लस्तीन के हवाले से भी बात की, तो उस पर मेरी ये कनेक्टिंग बात है कि जिसको हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, एक 23 साला लड़की को, उसने गज़ा में बच्चियों की तालीम के लिए ये पिछले माह जब ये ऐसे हालात पैदा हुए थे तो $150,000 जो है उनको हेल्प आउट किया। 15 मिलियन डॉलर। तो ये मलाला यूसुफज़ई हैं जो जिनकी पिक्चर को कैसे तरोड़ मरोड़ के आवाम इस मुआशरे के सामने पेश किया गया। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगी कि वही इंजीनियर्स जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, मैं समझती हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी डिसइंफॉर्मेशन चल रही है वो उन्हीं की इंजीनियर करदा है। और मैं समझती हूं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, जिस तरह से हर सवाल उठाने वाला या कोई लॉजिकल सवाल करने वाले को गद्दार डिक्लेयर किया जाता है, और उनसे डरने वाले, सच का मुकाबला ना करने वाले और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की को मोर्चा बनाकर उसके पीछे छुपने वाले ही दरअसल पाकिस्तान के असल गुनाहगार हैं। बहस दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन मैं एक और मौजू पे बड़ी आपकी अहम राय को लेना चाह रहा था कि सुनने में आ रहा है कि
میاں محمد شہباز شریف صاحب کی کوئی ڈیل ہو چکی ہے اور وہ بڑی جلد یہ لندن تشریف لے کے جا رہے ہیں اور ضرور کچھ کایا پلٹنے والی ہے اور حالات بدلنے والے ہیں. جانی نہ کوئی کایا پلٹنے والی ہے نہ کوئی حالات بدلنے والے ہیں. اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ چاہے وہ نواز ہو، چاہے وہ شہباز ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ عمران ہو یا چاہے وہ نیازی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کی ولدیت ایک ہی ہے. چلیں اس طرف بھی چلتے ہیں، لیکن ناظرین کو بہت شدت سے انتظار ہے کہ کسی طریقے سے جو آپ کا اسپیشل اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت سے نوازا ہے، چہ جائے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس تکلیف اور اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن میری بھرپور آپ سے مؤدبانہ عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ ضرور آج ناظرین کو وہ موقع دیں کہ آپ کی کسی سے بات ہو. اور وہ میں کوشش کروں گی، یقیناً وعدہ نہیں کر سکتی، لیکن میری کوشش رہے گی. آج کل بہت لوگوں کو بہت سی امیدیں وابستہ بھی تھیں، بہت سی مایوسیاں بھی ہیں، بہت سے سوالات بھی ہیں اور بہت سی قیاس آرائیاں بھی ہیں. میں کوشش کروں گی کہ وہ جو اس وقت اس مقام پر ہیں، جو شاید کرنے کو کر تو سکتے تھے لیکن ابھی تک وہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. یا آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کپتان صاحب کی طرف ہے. ہاں وہی کپتان جو پہلے زندہ ہے. آپ کو لگتا ہے، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ وہ لاہور کے جلسے میں اسٹیج سے گر گئے تھے. بے شک گرے تھے لیکن وہ رہے تو زندہ تھے. آپ کی نظر میں ہے. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے میری جان. میں یہ بات ثابت کر سکتی ہوں دلائل سے اور ثبوت دے کر کہ وہ جو اس حادثے سے پہلے کے تھے وہ اس کے بعد کے نہیں رہے. کیسے؟ ان کی باتیں آپ خود ان کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیجئے. وہ جو حادثے سے پہلے کہا کرتے تھے، حادثے کے بعد نہ انہوں نے وہ کیا بلکہ اس کے اپوزٹ ہی کیا. میں سمجھتی ہوں کہ شاید انجینئرز کو موقع مل گیا ان کے اوپر اپنی تحقیق کرنے کا. آج کل بہت چرچا ہے کرونا وائرس کی ویکسین کو لے کر کہ اس کے اندر کوئی خاص چپ ڈال دی گئی ہے جو آدمی کو روبوٹ بنا سکتی ہے. مجھے کرونا وائرس کی ویکسین کے بارے میں تو اتنا نہیں پتا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک عملی مثال ہمارے سامنے یقیناً ہے ایک ایسے آدمی کی جو پہلے آدمی ہوا کرتا تھا لیکن آج کل زیادہ روبوٹ لگتا ہے. تو ہم ضرور چاہیں گے کہ اگر ایسی بات ہے اور آپ کے یقین کے مطابق ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ ظاہری طور پہ زندہ نہیں ہیں تو ہم ضرور چاہیں گے. نہیں، وہ ظاہری طور پہ زندہ ہے لیکن ان کی روح جو ہے وہ بھٹک رہی ہے. میری کوشش رہے گی کہ اس بھٹکی ہوئی آتما کو، میرا مطلب اس بھٹکی ہوئی روح کو اپنے اندر سراہ لوں اور کوشش کروں جاننے کی کہ اس روح پر کیا گزر رہی ہے اور وہ روح کیا سوچتی ہے آج اس جسم کو ایوان اقتدار میں بیٹھے دیکھ کر. وہ روح کیا محسوس کرتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مراد سعید اور زرتاج گل کو، جنہوں نے اپنی جوانی سے میری روانی کو قائم کیا رکھا ہے. ورنہ مجھے یاد ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں شیخ رشید جیسے آدمی کو اپنا چپراسی بھی نہیں رکھوں گا، جس کو میں نے آج وزیر داخلہ بنایا ہے. لیکن میں قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید آج بھی میرے نیچے ہے، فردوس عاشق اوان بھی میرے نیچے ہے، اور یہ جرنیل بھی
मेरे नीचे है। मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता चुका हूं, तो मैं पाकिस्तान को महंगाई के खिलाफ भी ये गेम जिता सकता हूं। मेरा तब्दीली का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। मैंने तुमसे 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। मैं जानता हूं कि मैं उसमें नाकाम रहा हूं, लेकिन कसूर मेरा नहीं है, कसूर उस मिस्त्री का है जिस पर मैंने भरोसा किया और सोचा कि ये हमारे घर की मुरम्मत करेगा। तुम लोग तो जानते हो पाकिस्तानियों कि हम जब मिस्त्री को घर में घुसा लेते हैं तो मिस्त्री सिर्फ घर की मुरम्मत नहीं करता, घर वालों की भी मुरम्मत कर देता है। ये वही मिस्त्री है जो पिछले 70 सालों से इस मुल्क की मुरम्मत करने में लगा हुआ है। कभी इस मुल्क का नक्शा बदल देता है, कभी प्लम्बिंग में घुसता है, कभी इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम निकालता है, कभी हमें बताता है कि मेरे घर के लोग चोर हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाओ, और मैं इनके कहने पर आ जाता हूं। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर तुम लोगों ने मुझे एक बार फिर हुकूमत दी तो मैं मिस्त्री को बदल दूंगा। मैं मानता हूं कि गलती मेरी है, मुझे इस मिस्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं मिस्त्री बदलूंगा तो यकीन जान लो कि तब्दीली जरूर आ जाएगी। मेरे पाकिस्तानियों, मत भूलो कि मैंने तुम्हें वर्ल्ड कप जिताया था। मेरे पाकिस्तानियों, मत भूलो कि मैं मगरिब को तुमसे बेहतर जानता हूं, और मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि तुम लोगों ने घबराना नहीं है। और याद रखो कि सुकून सिर्फ कब्र में आता है। मेरे पाकिस्तानियों, अगर मैं कब्र से बच सकता हूं तो मैं तुम लोगों को भी कब्र से बचा लूंगा। मेरे पाकिस्तानियों, तुमने घबराना नहीं है, बस यकीन रखो कि एक मौका मिलते ही, अगला मौका मिलते ही मैं मिस्त्री बदल दूंगा। बस करें बेगम साहिबा, बस करें। मैं निहायत शर्मिंदा हूँ और मादत ख्वाह हूँ, आपको इतनी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा। मैं अभी देख रहा था, और कैमरे की आंख भी शायद देख रही होगी कि इस दौरान बेगम साहिबा को कितनी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा और उनकी आंखों से आंसू रवां हो गए। शायद मेरे लिए इस तकलीफ़ के अजाले के लिए कोई अल्फाज नहीं है बेगम साहिबा। मैं वाकई मैं तो ये सारा प्रोग्राम तफरीह के लिए कर रहा था, लेकिन आपको इस अज़ियत से गुजरना पड़ता है। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी मैम। मैं थक गई हूँ जान, मैं थक गई हूँ। प्लीज मुझे मेरा कमरा दिखा दो। आई थिंक आई नीड अ मसाज। कैन यू प्लीज हेल्प मी? ऑलराइट डार्लिंग्स, सो लवली टॉकिंग टू यू। और याद रखिए, आपने घबराना नहीं है। तो नाजरीन, हम अगले प्रोग्राम में बेगम साहिबा से फिर मिलेंगे। आप सब नाजरीन से दरख्वास्त है कि चैनल मेरे अंदर पाकिस्तान, जो कि इस वक्त बेगम नवाज़िश अली का चैनल है, आपका चैनल है, मेरा चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें मोहब्बतों में याद रखिएगा। मुझे और बेगम साहिबा को और मेरे अंदर पाकिस्तान के चैनल की टीम की तरफ से आप सबको नहायत अदब से अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे अंदर है पाकिस्तान, मेरे अंदर है पाकिस्तान, मेरे अंदर है पाकिस्तान।